ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੜਕੇ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅੱਬੂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਕਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਗੈਰਤ भी ਵੇਚ ਤੇ की रोटी खानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ आज 2 बहनें मौजूद हैं। 2 बहनें हैं, एक भाई है जो माजूर है, ना इनकी माँ है ना इनका बाप है। माँ इनकी फौत हो चुकी है। वो माँ कैसे फौत हुई है वो आपको ये बहनें बताएंगी। और बाप इनको छोड़कर जा चुका है दूसरी शादी करके, 5 साल हो गए हैं, बाप का कोई पता नहीं है। ये 3 बहन भाई हैं और ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजर कर रहे हैं। आज इनमें से एक बहन की मुझे कॉल आई और उसने कहा कि हम लोग अब इस हद तक तंग आ चुके हैं कि अब हम लोग अपने जिस्म बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि लाहौर के अंदर या जितने भी इस तरह के मशहूर शहर हैं उनमें इसी कारोबार में सबसे ज़्यादा पैसा और औरत के लिए सबसे ज़्यादा आसानी इसी चीज़ में है। इनकी क्या कहानी है आपको ये खुद ही बताएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ अम्मी कैसे फौत हुई थी? अम्मी को अटैक हुआ सी, मेरी अम्मी नु ते फौत हो गई सी। कैसे हुआ था, क्या बात हुई थी तब? काम ते जांदियां सा, इस वजह तो उन्हें सदमा लगा सी। क्या हुआ था आपकी मम्मी को? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੜਕੇ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। अम्मी के फौत होने के कितनी देर बाद अब्बू छोड़ के गए? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। अब्बू ने कभी नहीं पूछा कॉल करके या अब कभी आके कि जवान बेटियां थी मेरी? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅੱਬੂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। आपका भाई है जो माजूर है, किस तरह से गुजर रही है ज़िंदगी? कैसे खाते हो, पीते हो, कैसे रह रहे हो? ये घर में किस तरह मिला ये वाला कमरा, कैसे है? ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੀ ਇੱਧਰ ਪਰਤ ਤੇ ਆਵੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇ। कितने बड़े थे उनके बेटे? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ, 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਜੀ। अच्छा, तो उसके बाद कहीं और काम नहीं मिला? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਦ ਮਾਰੜੇ ਨੇ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकती हो या आपके लिए वो आसान है कहीं जाए बगैर? ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। क्या काम कर सकती हो? ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੋਏ, ਧਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ। अभी पहले किया है ऐसा कोई काम? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕभी ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ।
ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਗਵੀਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ये जिस घर में आप रह रही हो, ये कमरा आपको मिला हुआ है, ये किसने दिया आपको? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 6000 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3500 ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕੀਤਾ ਨੇ 3500 ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੇ 32 ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। कभी शादी के लिए नहीं सोचा कि हम जवान हैं, एक बहन आपकी ही है, एक आप हो, भाई है, तो ये कब तक ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਾਨ ਹੈ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕਾਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਖੁਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, और ऐसी कोई काम नहीं कर सकते। आपने मुझे ये बात की कि हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, खाने को नहीं है, हम लोग अपना जिस्म बेचना चाहते हैं। क्यों आपने इस तरह की सोच सोची है? कोई किधर राह ही नहीं सी हैगा सी, और फिर असी जिस्म बेचन दी तिकरा ही अपने आ। कोई सानू कोई असी बाहर जाइए कोई खलोन नहीं शहर च देंदा, मुल्क च खलोन नहीं देंदा। असी आखिया फिर गैरत भी बेचते की रोटी खानी। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਤਿਕਰਾਂ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਿਆ, ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। भाई बात कर सकता है? हाँ भाई बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कब से आपके साथ हुआ? मैं 6 साल का था, फालिज पै गया बांह नूं ते लत्त नूं। टांग को भी मसला है? हाँ जी हाँ, टांग को भी मसला है। तो ये इसका कोई इलाज मुमकिन है? जी हाँ, अस्पताल फिरे ने नहीं इलाज होया, कहने 20-25 लाख रुपया होएगा तो इलाज होएगा। तो जवान बहनें हैं आपकी, किस तरह आप, वो कहती हैं हम लोगों को बाहर भी कहीं नहीं जाने देता? नहीं, मैं इन्हें बाहर नहीं जान देता। लड़के इन लोगों को छेड़ते हैं, मैं फिर इन लोगों को डरा। मैं क्या बाहर नहीं जाना, मैं मांग के लाया रोटी, आपको चाहिए मैं खिला दूंगा आपको। आपको पता है आज ये इस नौबत पर आ गई कि हम जिस्म तक बेच दें तो ताकि हमारे भाई का इलाज भी हो जाए और हमारे घर में खुशहाली आ जाए, रोटी मिल जाए, घर का किराया दे दें। आपको पता है इस बात? जी हाँ पता है। मैं फिर भी नहीं इन लोगों को बाहर जाने देता, क्योंकि लड़के बड़े बगैरत ने, मैं बाहर नहीं होने जान देता। ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं डरना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ना जाया करो। फिर भी आपको लगता है आप इस तरह, कब तक आप इस तरह मांग मांग कर इनको पाल लोगे? बच्ची बहनें आपकी बड़ी हैं, शादियां होनी है इनकी, कल को कैसे गुजरेगी जिंदगी? जिनकी ऐसे ही गुजर रही है। आगे का कभी सोचा है कुछ? नहीं ये मेरी बहनें हैं, इनका क्या बनेगा? नहीं, मैंने आगे का नहीं सोचा। हमेशा साथ ही रहना है? नहीं, साथ फिर? में रहना। इन लोगों की शादी कर देंगे। कैसे करोगे शादी इनकी? पैसे की मांगता हूँ ना, मांग के। इससे तो आपकी 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी होती। जी हाँ पता है, हम लोगों की रोटी भी नहीं पूरी होती। आप लोगों के पास कोई नंबर है, कोई मोबाइल नंबर कुछ ऐसा है? हाँ जी है वे नंबर है, नंबर है, बस नंबर ही है, व्हाट्सएप वगैरह नहीं है उस पर? नहीं अच्छा, ये इधर का एड्रेस क्या है? इधर के एड्रेस का भी नहीं हमें पता। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि ये ठोकर का इलाका है। ठोकर के पास एक ऑफिस है रेस्क्यू 1122 का, उसके पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये फैमिली मौजूद है और इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। जितना हो सके आप लोग इस फैमिली की मदद कीजिए, क्योंकि ये जो बहनें हैं ये हम सबकी बहनें हैं और कभी भी कोई भी मर्द हो औरत हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी औरत अपना जिस्म बेचने के लिए, एक रोटी के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए, अपने घर में खुशहाली के लिए अपना जिस्म बेचकर अपनी बहन का इलाज करवाए, भाई का इलाज करवाए।
भाई माजूर है, फिर भी जितना हो सकता है वो करता है अपनी बहनों के लिए, चाहे वो जितना भी करता है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाएगा कभी भी कि वो अपनी बहनों की कल को शादियां करे, अपने घर में खुशहाली लेकर आए, इस कमरे का 3500 रुपया किराया दे, वो इतना नहीं कर सकेगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके इनकी मदद कीजिए, ताकि ये किसी भी गलत रास्ते का इंतखाब ना करें। अगर आज इन्होंने सोच लिया तो कल को ये कर भी सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।